तो मैंने सुना है आप अपनी न्यूरो साइंस कोचिंग से लोगों के ब्रेन पैटर्न्स बदल देते हो। जी, और मेरा प्रॉमिस है, आप जो रिजल्ट चाहते हो वो उससे मिल वो सकता है। मुमकिन है, कंडीशन अप्लाई नहीं है। कोई भी ब्रेन पैटर्न, किसी भी तरह का ब्रेन पैटर्न चेंज करने में या कितना टाइम लगता है? फ्रीडम फ्रॉम फियर, एनी काइंड ऑफ फियर। 10 मिनट में Any बड़े kind of से fear. बड़ा फियर आपका खत्म हो जाएगा। खत्म मीन्स डिसअपियर। ब्रेन का फिनोमिनन समझाता हूं आपको। ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न टू बी स्ट्रेस्ड। अपने आप भी कर सकते हैं। पहले हाउ पे चलते हैं, फिर वाई पे चलते हैं। जैसे आप बोलो। See, if I look into all the people that I have coached, led and trained, should be more than 2 lakh people. पैसे का स्ट्रेस उनको भी है, पैसे का स्ट्रेस यहाँ पे भी है। कोचिंग ट्रेनिंग या ट्रेनिंग डेवलपमेंट इंडस्ट्री मल्टीफोल्ड्स बढ़ी है। मगर क्या आप अपने आप को मेंटली रगड़ने को तैयार हो? क्या न्यूरो साइंस के टूल से ब्रेन पैटर्न्स और एक्शंस ऑल्टर हो सकते हैं? एब्सोल्युटली। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब वो उस स्टेज पे होते हैं और उनको लगता है कि अब तो हम पहुंच गए, तभी वो गिरते हैं। गिरते भी बहुत तगड़ा है। तो 2 दिन के कोर्स में आपको हम इंडिविजुअल लेवल पे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। तो एक टूल देते जाओ जाते जाते। 20% प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। नोटिस कर लेना, यू शुड टेक द पर्सन टू अ हाई, मगर ये हाई ऑथेंटिक होना चाहिए, झूठा नहीं, ना राइट? एंड देन व्हेन यू leave them with some taste, something that they remember you for. Welcome to Podcast by Space Creators. As we had promised you that we will keep bringing people from new industries with only one mission, that is truly inspiring people. So today we have somebody from the coaching and training industry. Yes, you must be happy to know coaching and training industry. His name is Munish Verma. He has 22 years of experience in coaching and training people in more than 50 cities around the world. He's trained more than 1 lakh people, and he's the CEO and founder of the Designing Life Academy. He's someone who used to run his export business and must have traveled more than 80-85 countries around the world, but then got into coaching for the simple reason because he loves making a difference to people's lives. So we will hear his story. In this podcast, you will also get to hear that how you can alter the brain patterns you have. Yes, brain patterns, जो आपके दिमाग में लाइनें होती हैं, जो आपके actions और habit define करती हैं, वो brain patterns कैसे change कर सकते हैं? What kind of coaching is important for what kind of people? Why take coaching? What is the difference between coaching and therapy? And many more things. Very, very interesting podcast. And in the end, Munish will give you also a tool which you can use, which will increase your productivity by 20% minimum. Okay. Now, one more request from Space Creators. We just calculated that about 89% of our viewers are not our subscribers. So please subscribe to our channel so that you keep getting these engaging podcasts. And finally, if you're somebody who's really inspiring, or you have somebody in your life who's really inspiring, do connect with us because we want them on our podcast. So let's welcome Munish. Thank you. Thank you for inviting me and giving me this opportunity. Thank you, Munish. You know, Munish, the name of your company, Designing Life Academy, in itself is very intriguing. तो मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, मैं खुद थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता हूँ कि अब भगवान ने हमारे हाथों में लकीरें दी, ठीक है, और हम कहा यह जाता है कि वो चेंज हो नहीं सकती, वैसे ही हमारे दिमाग के ब्रेन पैटर्न्स बने। अब जो वो ब्रेन पैटर्न्स हैं वो हमारे को हमारे एक्शंस और हैबिट्स देते हैं जिससे रिजल्ट्स आते हैं। तो मैंने सुना है आप अपनी न्यूरो साइंस कोचिंग से लोगों के ब्रेन पैटर्न्स बदल देते हो। जी, ये कैसे करते हो? तो भगवान, पहली चीज़ ये पॉसिबल है और कैसे करते हो? पहली बात, भगवान जी वाले डोमेन में मैं काम नहीं करता। हाँ, ठीक क्योंकि वो मेरा डोमेन नहीं है। तो मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं वहां चला जाऊं। क्या न्यूरो साइंस के टूल से ब्रेन पैटर्न्स और एक्शंस ऑल्टर हो सकते हैं? एब्सोल्युटली। बहुत बार आपने ये नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों के जीवन में दुविधा आती है। दे गो थ्रू सर्टेन टाइम्स व्हिच आर नॉट गुड, and all of a sudden you find a certain change in them. बदल जाते हैं। हाँ, बदलते हैं लोग।
मगर वो नॉर्मल सर्कमस्टेंस में नहीं बदलते। या तो कोई विपदा आएगी, कोई सिचुएशन आएगी जो बड़ी हर्टफुल हो, कुछ नुकसान हुआ होगा, किसी की डेथ हुई होगी, तो आपको लगेगा हाँ यार इस व्यक्ति में चेंज आ गया। मगर साधारण सर्कमस्टेंस में क्या करें, तो क्या कर सकते हैं? तो क्वेश्चन ये नहीं है कि होगा या नहीं होगा, पहले ये समझ लेते हैं क्यों नहीं होगा। सारे लोग ड्रिवन नहीं होते, राइट? तो मैं बहुत बार ये बोलता हूं कि लोग झूठ बोलते हैं, एक्शन झूठ नहीं बोलते। तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आते। तो कंफर्ट जोन से बाहर आने के कोई टूल्स हैं क्या? हाँ बिल्कुल हैं। और वो टूल्स मैंने डेवलप किए हैं, बनाए हैं, कहीं अवेलेबल नहीं है, और वो लाइफ के एक्सपीरियंस से बने हैं, हियर से नहीं है। हियर से नहीं है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस, मतलब आपके अपने मेरे अपने एक्सपीरियंसेस में उनको यूज किया गया है, उनसे रिजल्ट्स कॉज किए गए हैं, और फिर वो टूल्स को अप्लाई किया गया फॉर माय पीपल। तो यस, ब्रेन के पैटर्न्स को ऑल्टर कर सकते हैं, एक्शंस को ऑल्टर कर सकते हैं, और मेरा प्रॉमिस है आप जो रिजल्ट चाहते हो वो उससे मिल वो मुमकिन है। हाँ, उसमें कोई एस्ट्रिक नहीं लगा है, कंडीशन अप्लाई नहीं है, मगर हाँ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है। एब्सोल्युटली। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई भी ब्रेन पैटर्न, किसी भी तरह का ब्रेन पैटर्न चेंज करने में या कितना टाइम लगता है, तो आप क्या कहोगे? वेरी करता है ह्यूमन टू ह्यूमन, वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, और वेरी करता है किस ब्रेन पैटर्न की बात करें। किस ब्रेन पैटर्न? तो मैं बता देता हूं कैसे। जिस चीज का इमोशनल चार्ज ज्यादा है उसको ऑल्टर करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगता है। अगर वो आपकी हैबिट को ऑल्टर करने का है तो वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। मगर अगर आप चाहते हो कि आपको फियर से निजात मिल जाए, यू हैव फ्रीडम फ्रॉम फियर, एनी काइंड ऑफ फियर, तो उसके लिए ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, उसमें कम टाइम लगेगा? 10 मिनट वाओ, मैक्स 10 मिनट में कर सकते हैं। 10 मिनट में बड़े से बड़ा फियर आपका खत्म हो जाएगा। खत्म मीन्स डिसअपियर। वाओ। इस कॉन्वर्सेशन में तो नहीं कर सकते ये, इस कॉन्वर्सेशन में नहीं कर सकते क्योंकि एक सेटअप में कर सकते, एक स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी है। तो ब्रेन का फिनोमिनन समझाता हूं आपको। हाँ। ब्रेन का फिनोमिनन है कि हमारे ब्रेन के जो केमिकल्स हैं, जो स्ट्रेस केमिकल्स हैं, वो हमेशा ही उजागर रहते हैं क्योंकि हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इसलिए मैं बोलता हूं that human beings are born to be stressed. Born to be stressed, okay. So you ask any human being, no matter how successful they are, no matter how famous they are, अगर आप उनसे पूछोगे कि आपको क्या चाहिए, तो इन 5 में से एक आंसर पक्का आएगा। क्या 5 में से? हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट और जॉय। ये क्वेश्चन अगर आप उनको बोलो कि आप गो 10 years बैक इन देयर लाइफ, तब भी यही चाहिए, तब भी यही था, मगर बहुत ग्रो कर गए जिंदगी में। वो इसलिए कि ब्रेन का फिनोमिनन ऐसा है। तो फियर के केस में आपका जो वो स्ट्रेसफुल केमिकल है जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं, वो बहुत हाई हो जाता है। अच्छा। तो वो प्रोसेस है पूरा, देयर आर 5 steps इन्वॉल्व इन दैट, मगर वो 10 मिनट में नीचे हो जाता। वाह। और फिर अगर जब आप सिखा देते हैं तो लोग अपने आप भी कर सकते हैं? बिल्कुल। तो एक और चीज मैंने ठानी थी, वो ये ठानी थी कि आपने नोटिस किया होगा कि आप बहुत सारे कोर्सेज में जाते हैं और जब तक आप उस एनवायरनमेंट में रहते हैं सब कुछ ठीक रहता है। बाहर जाते हैं तो द लाइफ हिट्स यू अगेन एंड यू आर बैक टू स्क्वायर वन। करेक्ट। एंड गिवन दैट वाज वन ऑफ द वेरी बिग क्वेश्चन फॉर मी कि यार इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो मैंने जो टूल्स बनाए हैं वो सारे वो टूल्स हैं जहां पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे जो सस्टेनेबल है। वाह। अगर आप अपने जीवन में 5 मिनट नहीं दे सकते तो फिर तो किसी भी चीज को डील करने के लिए, फिर कोई पॉइंट ही नहीं है। मगर मेरा प्रॉमिस है, आप 5 मिनट दे लो, 2 से 3 हफ्ते में देखो सारे ब्रेन पैटर्न्स डोरमेंट हो जाएंगे।
वाह, डिसअपियर नहीं होते सिवाय फियर के, फियर डिसअपियर हो जाएगा, बाकी डॉर्मेंट हो जाएंगे, डॉर्मेंट हो जाएंगे, तंग नहीं करेंगे उनका वो आपको तंग करना बंद कर देंगे। या अब एक बात बताओ मनीष, हाउ डिड यू गेट इनटू ऑल दिस? मींस मतलब फ्रॉम योर बैकग्राउंड यू नेवर स्टार्टेड एज अ कोच, तो कैसे कैसे आप इसके अंदर आए और व्हाट इंस्पायर्ड यू, व्हाई डिड यू गेट इनटू दिस? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि लोगों को कोच करना, ट्रेन करना इतना आसान काम नहीं है, मतलब उनसे डील करना, हर आदमी फ़र्क है, इतना ईजी नहीं होता। तो फिर भी आप इस लाइन ऑफ बिजनेस में, और मुझे ऐसे भी लगता है ये बहुत स्केलेबल बिजनेस नहीं है, फिर भी आपने ये लाइन ऑफ बिजनेस चूज किया, तो व्हाई, हाउ? तो पहले हाउ पे चलते हैं फिर वाई पे चलते हैं, जैसे आप बोलो। राइट? हाँ तो हाउ तो बड़ा सिंपल कि एज आई वाज ग्रोइंग अप हाँ एंड सो आई सॉ लॉट ऑफ ट्रेनर्स, हम्म और मुझे लगा कि यार ये बोलते तो बड़ा अच्छा है, हम्म तो मुझे भी ऐसे बोलना चाहिए। अच्छा, वो अट्रैक्शन थी। तो अट्रैक्शन वही थी, राइट? ग्रोइंग अप मींस इन योर टीनेजर। A little beyond teenage. Okay. So when I was 21, 22, हाँ तो मुझे लगता था कि you have to be a good orator. हाँ, टू बी अ गुड ट्रेनर। So ट्रेनिंग का तो कोई दिमाग में नहीं था. अच्छा, बस But ये you should be a good orator, right? That so at least what you can do is कि आप लोगों को अपनी तरफ थोड़ा सा आकर्षित कर सकते हो. शुरुआत यहाँ से हुई थी. और फिर प्रोग्राम किया. तब आप क्या काम कर रहे थे? मैं तब ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता था. अच्छा, ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते थे। और ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते करते मैं दुनिया भर घूमा. और मगर पता नहीं कहीं पे मन में हमेशा बचपन से ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से मेरे अंदर डाला हुआ था कि यू शुड बी ऑफ सर्विस. तो बड़ों की सेवा करना और लोगों से बात करना, प्यार से बात करना, तो मेकिंग अ डिफरेंस तो था, मगर उसका कोई एवेन्यू नहीं था. और फिर जब एक दिन एवेन्यू मिल गया और लैंडमार्क के थ्रू मैंने प्रोग्राम किया और मुझे लगा कि यार दिस इज माय लाइफ. जबकि मेरी पूरी फैमिली अगेंस्ट थी क्योंकि उसमें पैसे नहीं थे. अच्छा, और मगर मैंने चूज जब आप ट्रेनर बन गए, आपने जब मैं ट्रेनर बन गया, हाँ, तो पैसे इतने थे कि बच्चों की फीस निकल जाए शायद. मगर बस ये सोच लिया था कि नहीं, my life is not meant for just working for bread and butter. It is much beyond that. So with Landmark you started leading programs. So I started leading programs. बहुत. So in which year? In 2000. So I joined Landmark in 2004. Started leading the introductions and seminars, and 2010 I became a Landmark forum leader. And the experience that I got there, the exposure that I got there, and leading to so many people around the world. ना सिर्फ उससे एक्सपीरियंस मिला, मगर उस ट्रेनिंग के दौरान और उसके बाद मैं अपने अंदर बहुत चीज़ें डालने लग गया, इनकलकेट करने लग गया. मेरा डेवलपमेंट होना शुरू हो गया और एक लेवल में सबकॉन्शियस लेवल पे डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, जो पता भी नहीं चल रहा. बिकॉज व्हेन यू आर अप टू समथिंग बिग, then your energy has to match that. So it was automatically happening. So how many cities did you lead and how many people How did many you lead? cities? I don't have a count. फिर भी I don't know, but 20, 30, no, more than that. more than that Almost 100 cities in the world. Wow. in the world. How 100 many cities. people you must have led to? See, if I look into all the people that I have coached, led, and trained, should be more than 2 lakh people. Very good. Yeah. ये एक चीज और उस 2 लाख में विपिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ऑटो रिक्शा वाले को भी किया, हाँ, और टॉप इंडस्ट्रीज को भी किया, टॉप इंडस्ट्रीज को भी, सेलिब्रिटीज को भी किया. और अल्टीमेटली पता ही चला कि सब सेम है यार. हाँ, फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं है. सबका स्ट्रेस आउटर वर्ल्ड में वही है, सो यू लुक अप टू देम, बट अंदर सेम वही है. स्ट्रेस लेवल भी सेम है, जिन चीज़ों से वो डील कर रहे हैं वो भी सेम है, और डील करने के तरीके भी ऑलमोस्ट सेम है. अच्छा,
और इंडिया में और जैसे अमेरिका में या फिर किसी और कंट्री में वहाँ पे भी सेम है? हाँ, पूरी दुनिया में अच्छा। इश्यूज अलग हो सकते हैं। हम्म, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ इशू होता है कि बच्चे बड़े हो जाएं तो माँ बाप के साथ रहें। अमेरिका में ये इशू नहीं है, और पहले ही निकाल देते हैं। निकालते हैं या बच्चे अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, राइट। हाँ। मगर रिलेशनशिप इशू तो वहां पे भी है, हाँ, मदर इन लॉ इशू वहां पे भी है, थोड़े से कम है। कम है क्योंकि रहते कम है साथ में। कौन सा इशू नहीं है? हम्म, पैसे का स्ट्रेस उनको भी है, पैसे का स्ट्रेस यहाँ पे भी है, पता नहीं हजारों चीजों के फियर है। सेल्फ डाउट वहां पे भी है, सेल्फ डाउट यहाँ पे भी है। एक चीज बताओ, ओवर द लास्ट आई वुड से 7-8 ईयर्स और मे बी 10 ईयर्स इंडिया में कोचिंग ट्रेनिंग या ट्रेनिंग डेवलपमेंट इंडस्ट्री मल्टीफोल्ड्स बढ़ी है, मल्टीफोल्ड्स बढ़ी होगी। ऐसा क्यों है और अभी क्यों बढ़ी? तो मैं थोड़ा सा कुछ कहूंगा कि हल्का सा कुछ रेडिकल और फिर हल्का सा इन फेवर हाँ, ऑल्सो, कोई बात दोनों चीजें बोलता हूँ। दोनों चीजें बोलो। इस वक्त अगर आप देखोगे ना, a lot of young people are going through a phase where actually they don't know what to do. Secondly, a lot of young people do not want to put in the effort that are required. और वो इसलिए नहीं कि वो गलत हैं, वो इसलिए क्योंकि जब हम बढ़ रहे थे हमारे लिए वो नेसेसिटी थी, अभी नेसेसिटी नहीं है। उन बच्चों के लिए नेसेसिटी नहीं है। प्लेटर में उनके पास सब कुछ मिला हुआ है, इट्स ऑन अ प्लेटर, राइट। दे गेट एवरीथिंग दैट दे वांट। आजकल वो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं आईफोन 16 ला के दो, पेरेंट्स आईफोन 16 ला के दे देते हैं, राइट। तो वो उनका कंफर्ट जोन है। और कोचिंग इंडस्ट्री एक ऐसी है जहां पे लगता है कि बहुत एफर्ट्स की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसलिए लोग बोलते हैं आ जाओ। तो 3 महीने का कोर्स भी कर लेते हैं, हफ्ते का कोर्स भी कर लेते हैं और सर्टिफिकेशन मिल जाता है। हाँ। और उस सर्टिफिकेशन की कितनी वैलिडिटी है या उसकी कितनी वैल्यू है ये नहीं पता। मगर आप कोच बनोगे तो उसके बाद आपको जिंदगी में लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, राइट। तो एक तो ये हो गया कि इट्स समथिंग ईजियर टू डू, दैट इज वन रीजन। सेकेंडली, लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग इनटू कोचिंग इज बिकॉज एक तरफ ना जब आप कोच बोलते हो तो हमारे यहाँ तो वैसे ही गुरु शिष्य परंपरा है, तो ऐसा लगता है कि अब आप गुरु बन गए तो थोड़ी सी इज्जत मिल जाएगी, तो वो भी है। मगर मैं चाहता हूं कि जो लोग यंग लोग अब कोचेस बन रहे हैं, एक ही चीज ध्यान दें कि उनका फोकस अपने ऊपर ना रहे। कि कोचिंग का मतलब ही है दैट यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग फॉर द पीपल हु आर कमिंग टू यू। बट मुनीश, अगर वो बनी इसलिए रहे हैं कि इज्जत मिलेगी या फिर जो इजी है, तो फोकस तो अपने ऊपर ही है, राइट। तभी तो मैंने कहा कि अगर वो फोकस को शिफ्ट कर लें तो बहुत ऑल्टरेशन। तो ये रेडिकल चीज थी, तो अच्छी चीज क्या है? हाँ, तो अच्छी चीज ये है कि मुझे लगता है कि जो कोचेस बनने शुरू हुए हैं उनमें से बहुत लोग ऐसे भी हैं जो एक्चुअल में कमिटेड हैं कुछ करने लोगों की लाइफ के डिफरेंस करने करने के के लिए। लिए। ओके। तो वो एक लेवल ऑफ एम्पैथी जो है वो दिखनी शुरू हो गई है यंग पीपल में भी। कम परसेंटेज है है तो सही, मगर है जो कभी होती नहीं थी। मैं ये नहीं कहूँगा होती नहीं थी, मगर अब दिखने लग गई है, क्योंकि जब पहले कम दिखती थी। when we were young, you and me are almost similar age group. When we were young, हमने तो सुना ही नहीं था। हमारे लिए तो क्रिकेट कोच होता था, या हमारे लिए तो बास्केटबॉल कोच होता था, या ट्यूशन पढ़ने चले जाते तो अकाउंट्स का टीचर होता था। हमने तो कभी ये वर्ल्ड सुना ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। हाँ बिल्कुल। और उस वक्त जो होते थे वो लगता था कि ये तो इनके पास जाएंगे एज एफ हमको कुछ प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, तो एग्जैक्टली एक टैबू था कि अगर जाता वही है जिसको कोई लाइफ में प्रॉब्लम है। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, इंडिया में जो गुरु शिष्य रिलेशनशिप है, या फिर अगर आप गुरुकुल के ज़माने में चले जाओ, हम गुरु विश्वामित्र की बात करते हैं, द्रोणाचार्य की बात करते हैं, बहुत सारे गुरु रहे हैं। तो गुरु एक बड़ी नॉर्मल सी बात रही है, ठीक है, गुरु की पदवी हाई रही है मगर नॉर्मल सी बात रही है। अब वो चीज़ इतने जनरेशन से थी मगर बीच में गायब हो गई। तो पहली चीज़, आपको क्या लगता है वो गायब क्यों हुई और दोबारा से ये उठाई कैसे गई?
अगेन गुरु शिष्य परंपरा उठाई गई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गायब दोबारा पिकअप हुई, दिखने लग गई, राइट। गुरु शिष्य परंपरा में ना मेरे को एक ही चीज समझ में आती है कि गुरु वो जो आपको सिखाए, करवाए और डंडा भी मारे। हाँ, मतलब he has a commitment that nobody else has for you, and that guru can be ruthless, जो पहले भी चलता था। अब लोगों का ना वो थ्रेशोल्ड लेवल बड़ा कम हो गया, सुन नहीं सकते। और आजकल गुरु भी ऐसे नहीं है जो सुनाए। क्योंकि वो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो अब आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो शायद कोचिंग बिजनेस के लिए नहीं करते, पैशन के लिए करते हैं। बिजनेस तो हो ही जाता है, एंड देन पीपल फॉलो देम, पीपल look up to them, and people want to be like them. Like जब मैं लैंडमार्क में था तो मैं भी अपने लीडर्स की तरफ देखता था और लगता था कि वाह, ऐसा होना, और हमारी जान लेके रखते थे वो, इन अ गुड वे, जो कि इंस्पिरेशन थी। तो आपने लैंडमार्क क्यों छोड़ा? बहुत सारे रीजन, तो आप ये मान के चलो पर्सनल रीजन था जिसकी वजह से छोड़ दिया, और उस वक्त की परिस्थिति में वो बेस्ट चॉइस थी मेरे पास। और तो छोड़ दिया, जो सबसे डियर था उसको छोड़ा, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी। मगर काम आप वही करते थे? मैं ये नहीं कहूँगा वही कर रहा हूँ मैं, या इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ, इंडस्ट्री सेम, काम मैं वही कर रहा हूँ मगर वैसे नहीं कर रहा, इंडस्ट्री सेम रखी है। कमिटमेंट विजन अभी भी यही है, इम्पैक्टिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हम लोग पता क्या बोलते हैं, तो जो लोग सुन भी रहे हैं वो भी अपनी लाइफ में देखें और इस क्वेश्चन का आंसर दें अपने आप, हाउ इज लाइफ। तो हर एक का कोई ना कोई आंसर आएगा, मगर उस आंसर के बाद एक छोटा सा बट लगा होता है। ऐसी है लाइफ तो अच्छी है मगर, लाइफ अच्छी है मगर, लाइफ ऑसम है मगर, तो हम ये मगर हटाते हैं, क्योंकि हम ना परिस्थितियों के गुलाम हो गए हैं, सर्कमस्टेंशियल हो गए हैं। हमारे को लगता है कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर कंट्रोल फ्री, और जो चीजें कंट्रोल में नहीं होती वो चीजें हमारे को डिस्टर्ब करती हैं। तो क्या न्यूरो साइंस से आप उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो। तो उसका तरीका है, पूरी दुनिया लगी है अपने माइंड को कंट्रोल करने में, और अगर उसको कंट्रोल करना है तो उसके कंट्रोल से बाहर आ जाओ, कंट्रोल हो जाएगा। और ये आप कराते हो? यही कराते हैं। नॉर्मली कितनी ड्यूरेशन के कोर्स में कराते हो? तो मैं इम्प्लीमेंटेशन और प्रोडक्टिविटी कोच हूं, तो मेरा काम है कि आपके आइडियाज को इम्प्लीमेंट करा के रिजल्ट कॉज कराना। तो हम हैंड होल्ड करते हैं, नंबर 1। तो 2 दिन के कोर्स में आपको हम इंडिविजुअल लेवल पे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, और फिर हमारा एक 5 महीने का कोर्स है जिसमें हमारा प्रॉमिस है कि हम आपकी प्रोडक्टिविटी 100% बढ़ा देंगे, आप ही के मैट्रिक्स के हिसाब से। और आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हम आपके रिजल्ट्स भी पूरे करा देंगे। देखो, बड़ा सिंपल है। आप चाहते हो कि आपकी पूरी कंपनी ऑटोमेट हो जाए, ग्रेट, मगर जो थिंकिंग ब्रेन है आपकी कंपनी का या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, वो आप हो और आपके की लीडर्स हैं। करेक्ट। उनको ऑटोमेशन से कोई लेना देना नहीं है, कभी भी नहीं होता, कभी नहीं होता। हाँ, ऑटोमेशन बहुत जरूरी है, करना चाहिए। तो थिंकिंग ब्रेन कैसे एक्टिवेट करें, अलाइनमेंट कैसे लेके आए। अलाइनमेंट ऑफ गोल्स बहुत इजी काम, अलाइनमेंट ऑफ एक्शन बहुत मुश्किल काम। इसका आप एग्जाम्पल दोगे अपने लाइफ में, आपने कहाँ यूज किया और क्या रिजल्ट कॉज किया? तो फैमिली बिजनेसेस में बहुत सारे केसेस हैं, एक नहीं बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे फादर एंड सन, ब्रदर्स, इवन ब्रदर्स, दे आर डूइंग ग्रेट बिजनेस, बट समहाउ वहाँ पे अलाइनमेंट के इश्यूज बहुत है। तो उसका प्रॉब्लम क्या होती है, डिसीजन मेकिंग इज डिलेड या फिर कई बार रॉन्ग हो जाती है। रॉन्ग भी नहीं,
रॉन्ग हो गई, डिलेड हो गई, रिएक्टिव हो गए, तो जो रिजल्ट्स वो कॉज कर सकते हैं वो कॉज नहीं कर पाते, राइट? वो सब लोग ठीक है कि किसी को 6 दिख रहा है, किसी को 9 दिख रहा है, हाँ। किसी को 8 भी दिख रहा होता। तो हम कोशिश ये करते हैं, और अगर हमारे को उनकी कमिटमेंट मिल जाए तो मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। वो ये बोले हम तैयार हैं करने को, हमको नहीं पता कैसे, तो हम करवा देते हैं। तो हम वो एक पूरा प्रोसेस है कि हम कॉमन ग्राउंड में लेके आते हैं कि झगड़े खत्म हो जाए। एंड लॉट ऑफ बिजनेसेस हैव ग्रोन लाइक दैट, नॉट वन, मेनी। मतलब मैंने ऐसे ऐसे देखा है कि जहाँ पे पार्टनर्स एक दूसरे से बात करते हैं बहुत जोर जोर से, और अब वो जोर जोर से बात करना ही खत्म हो गया, कि अब जो मीटिंग्स भी होती हैं वो प्रोडक्टिव होने लग गई। नहीं तो पहले जोर से बात होती थी, कोई नतीजा नहीं निकलता था, उठ के चले जाता था एक। तो वहां शुरू हो गए। ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, मगर प्रॉब्लम क्या है, बड़ी सिंपल। हम ब्रेन का वो पार्ट यूज नहीं करते जो फ्यूचरिस्टिक है। क्या मतलब? तो ब्रेन में, हमारी बॉडी में 5 ब्रेन होते हैं। तो जो यहाँ पे, तो यही कहते हैं, हाँ, इसको ब्रेन कहते हैं। तो यहाँ पे 3 ब्रेन है। हाँ, 3 ब्रेन है, ठीक है जी। नॉर्मली लोग कॉन्शियस सबकॉन्शियस ब्रेन बोलते हैं, लेफ्ट राइट ब्रेन बोलते हैं, मगर 3 ब्रेन है। 3 ब्रेन। तो 3 ब्रेन में जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन है उसको हम बहुत कम यूज करते हैं, वो भी हम लोग कॉन्शियसली यूज नहीं करते, अनकॉन्शियसली यूज ज्यादा है। जैसे 3 ब्रेन कौन से हुए? सो 3 ब्रेन होते हैं। सबसे पहले आपका सबसे पुराना ब्रेन, इसको एग्जीक्यूटिव ब्रेन, प्राइमल ब्रेन, क्रॉक ब्रेन, रेप्टिलियन ब्रेन, फिर नियोकॉर्टेक्स जहां पे आपकी हार्ड डिस्क है, और फिर ये है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इसको त्रिनेत्र बोलते हैं। ये एक्टिवेट जब हो जाता है तो आपको लगता है बहुत बार आप काम कर रहे होते हो और आपको पता भी नहीं चलता टाइम कैसे निकल गया, क्योंकि ये एक्टिवेटेड होता था। और इस वाले ब्रेन में स्ट्रेस नहीं है। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज करा लेते हैं, और एक्सरसाइज से आपको पता चल जाएगा इस पे स्ट्रेस है या नहीं है। बिल्कुल कराएं छोटी सी एक्सरसाइज, अगर आप बोलो तो आज तारीख आप मेरे साथ करा लो, और जो देख रहे होंगे, माय इनविटेशन टू ऑल ऑफ यू इज आप अपने लिए कर लेना। बहुत बढ़िया, मैं आपके साथ कराता हूँ ना। हाँ। तो आप एक काम करो, आज 26 दिसंबर 2024 है, आंख बंद नहीं करनी इस एक्सरसाइज में। ठीक है। आंख खोल के अपने आप को 26 दिसंबर 2025 में लेके जाओ। जस्ट थिंक like you are seeing, as if you're seeing something. Okay. So look into the future, right? Now tell me, how would life be on 26 December 2025? I can see a bigger office. A bigger office, right? Yeah. And I can see a few more projects that I'm doing in real estate. So you can see something better than what you have right now. Correct. है ना? Correct. हर एक को ये दिख रहा है। अब मैं आपको दोबारा 26 दिसंबर 2025 में लेके जाना चाहता हूं। ठीक है। और मैं चाहता हूं अब आप आंख खोल के फ्यूचर देखो और कुछ नेगेटिव देख के बताओ। नहीं दिखेगा आपको, नहीं दिख पा रहा, मतलब मैं बना रहा हूं, बनाना पड़ रहा है। पॉसिबल, क्योंकि जो बना रहे हो वो रेफरेंस है पास्ट का। फ्यूचर में नेगेटिव नहीं दिखता। नाउ इस ब्रेन में नेगेटिव ही नहीं है। हम प्रेडोमिनेंटली ये वाला ब्रेन यूज करते हैं जो सर्वाइवल मैकेनिज्म के लिए बना है। करेक्ट। तो वो हर चीज में थ्रेटन्ड हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है, यूं डिसीजन ले लेता है। रिएक्शन इज अ फंक्शन ऑफ बीइंग थ्रेटन्ड, राइट? 0.07 सेकंड में आपका एक ब्रेन का पार्ट होता है, वो एमिग्डाला बोलते हैं उसको, जो थ्रेट मैकेनिज्म है आपका, वो एक्टिवेट हो जाता है। दैट्स इट। अब आप रिएक्टिव स्टेट में हो, या फाइट में या फ्लाइट में। तो अगर आप दिन में नोटिस करेंगे तो बहुत रेयर केस में लोग 3 घंटे काम करते हैं। लोग कहते तो ये हम 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहे हैं। आप 8 घंटे 10 घंटे काम पे हो, कर नहीं रहे। मैं कह रहा हूं एक बार कैमरा लगा के देखो, आप वो सब काम कर रहे हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, मगर शायद वो उस वक्त की जरूरत भी नहीं है। तो
तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है 0.07 सेकंड में, और हम डिस्ट्रैक्ट होके उस तरफ जाते हैं जिस तरफ हमारे को मजा आए, हाँ, चाहे वो प्रोडक्टिव हो चाहे वो ना हो। आपने बोला हम थ्रेटन होते हैं 0.07 सेकंड में, और जब हम थ्रेटन होते हैं तब हम उस तरफ जाते हैं जहां हमारी जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली क्योंकि थ्रेट को डील करना ना, ब्रेन कहता है क्यों डील करना। अच्छा, ब्रेन आपको उससे डिस्ट्रैक्ट करके ले जाएगा कि डील ही नहीं करना। इसी को प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ यू डिलेइंग थिंग्स। प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ फंक्शन ऑफ यू बीइंग थ्रेटन। या प्रोक्रेस्टिनेशन तो आउटकम है, मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता, प्रोक्रेस्टिनेशन इज एन आउटकम। मैं थ्रेट हुआ किसी चीज से, और जैसे ही थ्रेट हुआ मैंने वो चीज छोड़ दी और किसी और काम में लग गया, तो ये वाली चीज डिले होती गई। तो ये तो कोई एड्रेस ही नहीं करता। अब अगर स्कूल में टीचर है या इवन ऑफिस में कोई काम कर रहा है, तो अगर कोई बंदा प्रोक्रेस्टिनेटर है उसको यही लेबल दे देते हैं कि ये प्रोक्रेस्टिनेटर है। एग्जैक्टली तो एड्रेस तो कोई कर ही नहीं रहा है। नहीं कर, उनको पता भी नहीं पता कैसे ही नहीं है एड्रेस कैसे एड्रेस करेंगे। ना। प्रोक्रेस्टिनेशन के बहुत सारे टूल्स बने हुए हैं, मगर प्रॉब्लम है टूल्स देने के लिए भी तो इम्प्लीमेंट भी तो करना है। हाँ, करेक्ट। तो वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या करें? आप इमेजिन करें, वापस आओ, आप 3 ब्रेन आपने बता दिए, बाकी 2 का है। तो बाकी दो, एक हार्ट ब्रेन बोलते हैं हाँ, और एक गट ब्रेन बोलते हैं। अच्छा, इनको भी आप ब्रेन मानते हो? ब्रेन है, अच्छा, ये ब्रेन है। और गट ब्रेन सबसे पहले एक्टिवेट होता है इवन बिफोर योर थॉट हैपेंस। ये ब्रेन कैसे है? हाँ, ये ब्रेन थोड़ा सा एडवांस है, इसके लिए अवेयरनेस चाहिए बहुत ज्यादा तो काम होना शुरू होता है। हाँ। मगर गट ब्रेन को छोड़ देते हैं 2 पर मिनट। इसका एक एग्जांपल दे दो आप, जैसे हार्ट ब्रेन का या गट ब्रेन का, और इसकी सर एग्जाम्पल दे देता हूँ। नॉर्मल रोजमर्रा के एग्जाम्पल दूं कोई भी। हाँ, तो रोजमर्रा का एग्जाम्पल देता हूँ ना। हाँ, आप कहते हो कल सवेरे से, ये उन लोगों के लिए जिनको सवेरे उठना मुश्किल है, हाँ, या ये उन लोगों के लिए जो डाइट पे जाना चाहते हैं, हाँ, राइट? मेरे जैसे। जैसे भी, हाँ। मेरे को देख के बोलोगे मेरे जैसे भी तो आप बोलते हो सवेरे 6 बजे उठना है, हाँ, राइट? ये आपका हार्ट ब्रेन है, ठीक बिकॉज यू वांट समथिंग फॉर द फ्यूचर, ओके। right? And this future is positive in nature. And then as the alarm button goes off, you press snooze and say kal se, हाँ, right? This is your this brain. जब आपका हार्ट ब्रेन और ये ब्रेन अलाइनमेंट में होगा, आप एक्शन में आ जाओगे। हाँ, और जब आपका हार्ट ब्रेन और ये अलाइनमेंट में नहीं होगा, तो हमेशा ही नेगेटिव जीतेगा, और ऐसा हमेशा। ऐसा क्यों है नेगेटिव? क्योंकि सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हाँ, हर एक को कंफर्ट जोन चाहिए। सर्दी का मौसम आ गया, कौन रजाई छोड़ना चाहता है? तो बेसिकली आप ये बोल रहे हो जो ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है या ये कंफर्ट जोन है, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये नेचुरल है, ह्यूमन बीइंग का है, बिल्कुल नेचुरल। बिल्कुल नेचुरल है, हाँ, बुरा नहीं है। हाँ, मगर इफ यू आर कमिटेड that you have more actions in life, then you'll have to do something about it. नेचुरल कोर्स में नहीं होगा। अब एक बात बताओ, अभी जो एकदम यंगस्टर्स हैं, मैं 2 के फोन्स देख चुका हूँ, वो जब किसी चीज़ के लिए अलार्म लगाते हैं तो वो ऐसे लगाते हैं 6, 605, 610, 615, 620, 625, 630। 9 अलार्म लगाते हैं 5-5 मिनट की देरी में एक ही चीज के लिए। फिर इनके दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ नहीं, जो लास्ट अलार्म लगाया उनको पता होते बजे उठना है अपने आप से चीटिंग कर रहे हो। अच्छा, क्योंकि अगर उनको पता है कब उठना है, हाँ, तो लास्ट अलार्म तो उतने बजे लगाएंगे ना। हाँ, तो दे आर जस्ट गिविंग देमसेल्व्स अ लिटिल होप। वाई? अब इसी का रिवर्स ले लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप सुबह फ्लाइट पकड़नी है, हाँ, अलार्म से पहले उठ जाते हो, हाँ, जितने मर्जी अलार्म लगा लो। हाँ, क्यों? सोते ही नहीं हो कई बार। मैं तो कह रहा हूं सो गए, एक्साइटमेंट होती है या फिर कोई कैरेट होती है, बेसिकली कुछ ना कुछ है ना, कुछ ना कुछ है, या एक्साइटमेंट है या स्ट्रेस है, दोनों में से एक चीज होगी। तो हम अपने आप को होप देते हैं कि नहीं ऐसा कर लेंगे तो अच्छा है। मगर ब्रेन क्या है? ब्रेन का जो नेगेटिव है, क्योंकि सर्वाइवल मैकेनिज्म है, वो बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आपके पास एक स्ट्रांग वाई नहीं होगा किसी भी चीज को करने के लिए,
हम लोग ना बहुत बार ये डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द व्हाई यू हैव इन योर लाइफ। लाइफ का व्हाई नहीं होता है, वो उस एक्शन का वाई होता है, हर चीज का व्हाई है। हर चीज का वाई है। तो आप कंटिन्यूसली यू आर ऑसिलेटिंग बिटवीन ये पकड़ूं या ये पकड़ूं, एंड प्रोडोमिनेटली आप नेगेटिव पकड़ते हो, क्योंकि उसमें ज्यादा वजन है। ज्यादा वजन नहीं है, उसमें ज्यादा टेंशन नहीं है, अच्छा। क्योंकि वो इजी है, कंफर्ट में है। मगर लोग समझते नहीं है, जितना कंफर्ट में ज्यादा जा रहे हो उतना ही स्ट्रेसफुल होते जा रहे हो, क्योंकि ग्रोथ नहीं है। इसीलिए देयर आर मेनी पीपल हु वुड टॉक अबाउट बिग वाइज ऑफ देयर लाइफ कि मेरे लाइफ का ये पर्पस है, ये पर्पस है, पर जब आप उनकी लाइफ देखोगे तो छोटा सा काम नहीं कर पा रहे होते वो। क्योंकि लाइफ का पर्पस बना लिया ना, ब्रेन को नहीं समझ में आती। जितना आप ब्रेन को क्लैरिटी दोगे, जितना उसको छोटा रखोगे, ब्रेन उतना एक्टिव काम करेगा। मुझे एक इस वाली कॉन्वर्सेशन में एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि पिछले 10 मिनट से तो एटलीस्ट मैं पॉडकास्टर नहीं था, आई वॉज ट्राइंग टू बी अ कोची। तो एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, मेरे को ना बड़े बड़े वाय समझ ही नहीं आते, कोई मेरे से पूछता भी है तो मेरे पास आंसर नहीं होता। मेरे से पूछोगे इस पॉडकास्ट का वाय क्या है, ये वाले एपिसोड का वाय क्या है, मैं बड़े आसानी से बोल सकता हूँ कि भाई लोगों को एक ओपनिंग मिले जिसमें वो एक नई चीज़ समझ सकें और लाइट हो जाए लाइफ में। मैं इतना बना सकता हूँ। मेरे को बोलोगे ना बड़ा बड़ा कुछ बना दे तो मेरे को समझ ही नहीं आता। ऑफ कोर्स, मुझे लगता है वो तो मैं ये वाले छोटे कर लूंगा तो शायद बड़ा अपने आप हो जाएगा। ऑटोमेटिक है, शायद नहीं है, पक्का है, 100%। लोग अपने एक्शंस को भी एक्शंस में नहीं तोड़ते। जो उनको लगता है एक्शन है, वो एक्शन में एक्शन नहीं है। करेक्ट। बड़े सारे लोग बोलते ना कि यार बिजनेस बढ़ाना है ना, सेल्स बढ़ानी है, चल 10 लोगों से बात करते हैं। 10 लोगों से बात करना ब्रेन के लिए एक्शन नहीं है। बात करनी क्या है, क्या बात करनी है, किससे बात करनी है, किस समय बात करनी है, फोन पे बात करनी है, मिल के बात करनी है। बड़ा ये छोटी छोटी चीजें इतनी जरूरी हैं। आज सुबह आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय टीम मेंबर्स, जैसे रियल एस्टेट में, तो मैं उसको बता रहा था, मैंने उसको बताया कि 7 दिसंबर को एक बिग टिकट क्लाइंट को मैंने कोई प्रोडक्ट पिच किया। उसने मुझे बोला, उसने मुझे सीधा 25% नीचे रेट कोट कर दिया कि अगर ये 100 की जगह 75 में मिलेगा तो कर सकते हैं, वो प्राइस होना चाहिए इसका। मैंने उसको बोल दिया नहीं जी ऐसा नहीं है। 7 दिसंबर से अभी तक मैंने फॉलोअप भी नहीं किया। मैंने ये देख अभी फोन आया उसका, अभी एज वी आर इन दिस पॉडकास्ट अभी उसकी साइट विजिट हो रही है। वो मेरे से बोला ये कैसे, मगर आप तो बोलते हो फॉलोअप करो, सब बोलते हैं सेल्स में तो फॉलोअप करना होता है। ऐसे नहीं। उस पिच में मैंने उसको कहाँ छोड़ा था, उसके दिमाग में कौन सा पंचर डाल के या कौन सा हुक करके छोड़ा था, उस चीज ने मुझे ये वापस कॉल कराई है उसने, दैट ही इज रेडी टू डू। आई सेड सॉरी आई कांट कम, सेड ओके सेंड अ सबऑर्डिनेट, ही इज रेडी टू डू अ साइट विजिट विदाउट मी, जो कि 25% रेट कम कोट कर रहा था। अब न्यूरो साइंस में इसको एक अलग तरीके से बोलते, राइट? हर कॉन्वर्सेशन में यू शुड टेक द पर्सन टू अ हाई, मगर ये हाई ऑथेंटिक होना चाहिए, झूठा नहीं ना, right? And then when you leave them with some taste, something that they remember you for. They will come back. They will always come back. Sooner or later. Correct. अगर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो वापस आएंगे। आजकल के युग में लोग एक तो बहुत बड़ा चलन हो गया है, इनवॉलंटरी कंपटीशन हो गया है। इनवॉलंटरी कंपटीशन, व्हाट डू यू मीन? कंपैरिजन हो गया है। हाँ, कंपैरिजन हो गया। यानी कि आप सामने वाले को देख रहे हो और बस यही बोल रहे हो उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, और भेड़ चाल है, जो उसने किया वही आप कर रहे हो। मुझे लगता है ये पहले भी था, अब ज्यादा हो गया। अब ज्यादा इसलिए हो गया ड्यू टू सोशल मीडिया। हाँ, कुड बी, बिकॉज पहले था तो आप पहले एक दिन में, अगर आप सोच के देखो, जब सोशल मीडिया इतना नहीं था तो हम एक दिन में 5, 10, 20, 100, अब मेरे सेल्स के लोग हैं तो हम कई बार 100 लोगों से भी इंटरेक्ट कर लेंगे। एक बंदा अगर सेल्स का नहीं है तो हो सकता है वो 5 से इंटरेक्ट करता था। ड्यू टू सोशल मीडिया वी आर इंटरेक्टिंग विद मिलियंस ऑफ पीपल
क्योंकि हम रील में जा रहे हैं या हम ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हम तो सारा टाइम इंटरेक्ट कर रहे हैं, एब्सोल्युटली। इस वजह से ये हो गया। तो लोग नॉलेज लेने में लगे हुए हैं, मगर मेरा रिक्वेस्ट है सब लोगों को, बहुत अच्छी चीज़ है नॉलेज, मगर थोड़ी थोड़ी लो और इम्प्लीमेंटेशन करो। सारी ले लोगे तो इम्प्लीमेंटेशन कम होता जाएगा। नहीं, क्योंकि टाइम उसी में जाएगा ना। नहीं, ज्यादा नॉलेज का मतलब अब ब्रेन को पता ही नहीं है कहाँ जाऊं। When you have so many options in front of the brain, the brain is not able to decide where to go, and then you're stuck. अब इससे मनीष एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मेरे पे। ये बात तो मुझे बड़ी क्लियर है कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, एटलीस्ट इन आवर कंट्री। आई थिंक वर्ल्ड वाइड ग्रो कर रही है, ठीक है, एंड इट शुड, इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। जो हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे, जो मैंने आपको बोला, अगर खराब कोचिंग लेके आते तो मैसअप होते हैं, तो आपने वहाँ नहीं होते, उनको पता ही नहीं है। अब किसी के लिए, अगर किसी को किसी भी चीज़ के लिए कोचिंग दी, देखो ज़्यादातर लोगों को कोचिंग किन चीज़ों में चाहिए होती है, मोस्टली दैट दे थिंक ऑफ कि मेरा करियर ऐसा हो जाए, सक्सेस ऐसा हो जाए, पैसा ऐसा बन जाए, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी उनके लाइफ गोल्स होते हैं। उनको कोचेस कैसे चुनने चाहिए? हाउ डू दे चूज अ कोच? क्या वो पहले स्ट्रीम सेलेक्ट करे? बहुत मुझे मालूम है, मेरे पास आंसर नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूं। ट्रिकी क्वेश्चन है ये। See, I want to leave people with an access through this podcast that they are able to select the right, I would say, right kind of coaches, or they are able to select the right kind of training they want to get into. Great. तो दो चीज़ें, एक तो रेफरेंस जरूर लेना चाहिए। अगर आप किसी कोच के पास जा रहे हो तो ज़रूर आप दो लोगों से पूछोगे तो पता चल जाएगा। सेकेंडली, कोच से मिल के आओ, राइट? और ये असेस करो जब आप उनसे बात कर रहे हो कि व्हाट इज देयर कमिटमेंट फॉर यू। वो आपके लिए क्या कर सकते हैं वो नहीं, उनका कमिटमेंट क्या है आपके लिए। जैसे तीन ओके, नहीं समझ में आ रहा, कोच ले लो, टेस्ट करके देख लो। तो कहावत है, हायर फास्ट फायर फास्ट। शॉर्टेस्ट टर्म के लिए ले लो। हम इमोशनल होके बंद जाते हैं। हाँ, आपके लिए वर्क नहीं कर रहा, कोई बात नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोच खराब है या आप खराब हो। हाँ। इसका मतलब आपके लिए वर्क नहीं कर रहा, सिंपल, ऑल्टर कर लो। तो तीन चीजें बोली आपने। एक कि रेफरेंस के थ्रू जाओ, 2-3-4 रेफरेंस चेक कर लो। दूसरी चीज, जाके मिलाओ और उसकी कमिटमेंट सुन लो आपके लिए क्या है। और तीसरी चीज, अगर वर्क नहीं कर रहा तो हायर फास्ट फायर फास्ट। हाँ, तो क्योंकि ना ये जानना कि कौन सही है और कौन गलत है बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ। बहुत मुश्किल काम है। आज मैंने 22 साल लगा दिए कोचिंग करते हुए, राइट? और आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 22 महीने भी नहीं लगाए। और ज्ञान दे और रहे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट उन सब लोगों से है कि कुछ एरियाज आपके लाइफ के ऐसे हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं। रिलेशनशिप इश्यूज हैं, यू होल्डिंग ऑन टू समथिंग, क्रिटिकलिटी है विद योर टीम्स, विद योर फैमिली। तो वहां पे जो भी कोच कर रहा है ना, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज अ लाइफ इज एट स्टेक। द वे यू गाइड देम हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ दैट पर्सन, है ना? तो you just cannot be so much preoccupied or thinking about yourself. You have to be so much responsible for what you're providing and how is that going to impact the other person. Correct. और अगर आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो तो मत घुसो। इस वाले पे मैं बाद में आऊँगा, मगर मेरा एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि अभी from what I've noticed, there's a lot of bulk coaching happening. You know, when I talk about bulk coaching, 1000 लोग हैं एक वेबिनार में, और किसी चीज़ पे वेबिनार हो रहा है, 2000 लोग हैं, 4000 लोग हैं। Is bulk coaching effective? Why not? And to what degree is it effective? It is not about whether the bulk coaching is effective or not. See, if you are online and there are 5,000 people, yeah, for that person who's online, you are looking at the leader. Correct. Right?
So, how effective and non-effective it is dependent on who's delivering. Who's delivering? And the question is, are you just delivering? Or are you being with people? So online भी you are with people, right? People can experience you, right? All the time. All the time. So again, that also comes with experience. मगर मुझे लगता नहीं है कि बल्क कोचिंग में कुछ खराबी है. कोई खराबी नहीं. कोई खराबी मतलब it is as effective. मेरा अपना ओपिनियन है कि effective है. Is it as effective as one-on-one or small group coaching? That is also very relative. That is also very relative. Why? Because a lot of people want one-to-one coaching or in a smaller group. A lot of people are okay with larger groups. हमारे को तो ये पता है कि जिसने खींचना है वो वैसे कहीं से भी कुछ ना कुछ खींच लेगा. मतलब कोची के ऊपर बहुत ज्यादा कोची पे डिपेंडेंट है. वो तो उसको पता करना है कि मेरे को यहाँ से अपने लिए क्या लेके जाना है. सब कुछ सबके लिए कुछ नहीं होता. तो अगर आप 1-to-1 में हो, स्मॉल ग्रुप में हो, लार्ज ग्रुप में हो, इफ यू आर देयर कि मैं आया हूँ, मैं अपना वक्त भी दे रहा हूँ, मैं अपने पैसे भी दे रहा हूँ और मैं कुछ लेके जाऊंगा, मेरा प्रॉमिस है वो लेके जाएगा. और कुछ लोग आते हैं जज करने के लिए. हाँ, कि देखते हैं क्या होगा. जो देखते में आते हैं फिर देखते देखते निकल जाते हैं. हाँ. एक चीज और बताओ. अब वो वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ. व्हाट यू वर टॉकिंग व्हेन यू वर टॉकिंग टू द कोचेस कि मेरा रिक्वेस्ट है अपने बारे में मत सोचो, लाइफ इज एट स्टेक एंड विद दैट लाइफ देयर आर मेनी पीपल एट स्टेक. अब इसमें ओवर द इयर्स द अमाउंट आई हैव सीन दिस इंडस्ट्री इवॉल्व, it is for some people it is also become a fad. Okay, now अब ये जब वो फैड है ना, उस समय जब आप सिलेक्ट कर रहे होते हो, देखो हम उसको तो ज्ञान दे नहीं सकते जो कोच बन रहा है, ठीक है, जिस भी कारण से बन रहा है. क्या पता वो शुरू इससे हो कि वो फैड है और करते करते उसको कुछ छू जाए तो वो सही लाइन पे आ जाए. बट जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें इन तीन के अलावा बंदा क्या इंश्योर कर सकता है कि वो राइट कोच सेलेक्ट कर रहा है? मेरे ख्याल से इन तीन के अलावा नहीं, मगर मैंने जैसे बोला, गो विद अ ओपन माइंड, हैव अ वेरी ओपन कॉन्वर्सेशन विद द कोच. And like I said, it's not about what they're going to do with you. They should also have a why. Listen to that. वो ना 3 Idiot पिक्चर में था ना, काबिल बनो, है ना. सक्सेस अपने कामयाबी पीछे पीछे आएगी. हम लोग कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं. मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इफ यू हैव अ ह्यूज कमिटमेंट ऑफ डिलीवरिंग व्हाट यू आर डिलीवरिंग एंड योर प्रोडक्ट इज ग्रेट, पीपल विल गेट इट. एक चीज और बताओ, ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इफ समबडी इज से अबाउट 22-23 and it's the first time they're getting into coached, it's okay to start with somebody who has say 5 years of experience. 4-6 महीने साल उसके साथ गुजार के उसके कुछ अच्छे कोर्स करके आपको भी कोचिंग लेने की थोड़ी सी नॉलेज आएगी. Then you go to a more experienced one, then you go to a more experienced one. Is that also a method? That could be for a lot of people. That could be for a lot of people. See, there are many reasons why people take coaching, and there are many reasons why people choose whom they choose, right? Okay. So money is a criteria, time frame is a criteria, what you're looking for is a criteria. Among the young people, they would love to work with somebody who is a little elder to them, not that elder, because then they can talk freely. 22-23 के तो 30-35 के साथ कर लेंगे. 32-33 वाला. मगर वो 50 वाले के पास जाके थोड़ा सा हिचकेगा. क्यों? उसको लगेगा कि मेरे फादर की तरह नहीं समझेगा, मेरे फादर की तरह है, क्योंकि जनरली यही होता है. मगर हाँ, मैं बड़ा सिंपल, वहाँ जाओ जहाँ आपका अलाइनमेंट में आ जाए. मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जिंदगी में कुछ भी काम करो अलाइनमेंट में किया करो. When your heart brain and your head brain is aligned, do that. Results will happen. और जहाँ अलाइनमेंट नहीं हो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए. और अलाइनमेंट का मतलब बड़ा सिंपल, चल देखते हैं, चल हो जाएगा, ये सब नहीं. Either let's do it or it's none. किस तरह के आदमी को कोचिंग या ट्रेनिंग में जाने की सोचना चाहिए और कब सोचना चाहिए?
क्यों मैं बहुत सारे लोगों को मिलता बोलता है यार जरूरत नहीं है, लाइफ इज गोइंग ग्रेट, व्हाई शुड आई? या तभी जाना चाहिए जब उनको लगे कि लाइफ इज गोइंग ग्रेट। क्योंकि जब आप अब इसके पीछे भी साइंस है, राइट? हाँ, जब आप अच्छा कर रहे होते हो हाँ, तो आपका जो हैप्पी केमिकल है हम्म, वो आपको ब्लाइंड कर देता है, अच्छा, टू द एक्सटेंट कि आपको कुछ और दिखता नहीं है। हम्म, उस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे लोगों को अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। लॉट ऑफ पीपल फील एलिनेटेड, लॉट ऑफ पीपल फील एज इफ you have a ego problem, and there are times when you take rash and impulsive decision, right? और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब वो उस स्टेज पे होते हैं और उनको लगता है कि अब तो हम पहुंच गए, तभी गिरते वो हैं। गिरते भी बहुत तगड़ा है। हाँ, तो मैं तो ये समझना में असमर्थ हूँ अभी तक। क्यों समझने में असमर्थ हूँ? मुझे लगता है कि जितने लोग सक्सेसफुल हैं उतना उनके पास एक कोच होना जरूरी है। हाँ, कोई भी कोच जो अच्छा कोच है उसको आपका बिजनेस नहीं आता करना, मगर उसको आपके माइंडसेट को डील करना आना चाहिए। करेक्ट। तो यू हैव समबडी हु कैन डील विद योर माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट कोई आदमी स्ट्रेट रखेगा तो बिजनेस तो चली जाएगा, चले जाएगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते, उड़ जाएगा। एक बहुत बड़े फंड मैनेजर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। सो ही मेड $37 billion last year. Wow. And for 12 calls in a year, he paid $12 million. 12 million. Wow. $1 million for a call. Wow. And somebody said, "Are you stupid that you're paying so much of money?" He said, "No, I'm not stupid. This is an investment." कि वो 1 घंटे की कॉल ने मेरे दिमाग को स्ट्रेट रखा ताकि मैं कर सकूं जो करना। And that's the reason why I made $37 billion. Wow. So great. तो कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ. और अब आप इसको थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट कर लें तो जितने बड़े लोग हैं उन सबके कोचेस हैं। वो मैं एग्री करता हूँ। That I also know a lot या of people. सॉरी, या जो एक्चुअल में बड़े होना चाहते हैं उनके पास कोचेस हैं। जो सिर्फ बोलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, उनके नहीं है, उनके पास नहीं होंगे। क्योंकि उनको लगता है वो खुद कर लेंगे। खुद तो खैर छोड़ो, मैंने नहीं देखे किसी को करते हुए, और अगर करते हैं वो वाला ग्राफ होता है ऊपर जाके गिरते हैं। जी। मेरे को एक चीज़ और बताओ कि एक सवाल है मेरा, कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ कि जो सबसे ज़्यादा आपको छुआ हो, आपने किसी को कोच किया और उसने कोई रिजल्ट प्रोड्यूस किया। आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग मेनी, बट जो सबसे ज़्यादा आपके दिल को छुआ हो। तो एक फैमिली जहाँ पे फादर और सन का अलाइनमेंट नहीं है। फादर काम पे जाते तो सन नहीं जाता, सन काम पे जाते तो फादर नहीं जाता। अच्छा, राइट? एंड गुड फैमिली, and they were not able to figure out what was happening. So everything was happening in the brain, right? जब बैठ के बात करनी शुरू की तो वो इशू इतना छोटा था, मतलब ट्रिवियल, मगर उन लोगों के लिए ट्रिवियल नहीं था। तो बड़ा ज़रूरी है इन सब लोगों के लिए। अब वो मेरे लिए इमोशनल क्यों है कि जो फादर डील कर रहा था 2-3 साल से, अचानक वो बच्चा अब उनके साथ ही फैक्ट्री जाए। हाउ डू फील? Amazing. Because now he has a partner who's not only getting trained for the future. Young हो जाएगा फादर। Young हो गया। और तो मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि यंग जनरेशन बहुत सारी आ रही है और पेरेंट्स एक्सपीरियंस्ड है, मगर बड़ा ज़रूरी है कि अपनी निगरानी बहुत ज़रूरी है। प्लीज लेट योर यंग जनरेशन फेल। आई एम नॉट सेइंग दे विल फेल,
but I'm saying let them fail. Let them fail. Give them a certain kind of autonomy, freedom. And you are managing from the up so that you know कि अगर फेल हो भी गया तो कोई खास नुकसान नहीं है, कंट्रोल कर लूंगा, संभाल लूंगा मैं. तो आप देखो कैसे लीडरशिप निकलती है. उनके आइडियाज को सोचो. और लिसनिंग बहुत जरूरी है. अगर ये 3 चीजें प्रोवाइड कर दें आज के जनरेशन में तो सिर्फ फैमिली नहीं, आपकी लीडरशिप विल बी अमेजिंग. नाउ देयर आर मेनी अदर थिंग्स टू डू. और मुझे मालूम नहीं है, बहुत सारी कंपनीज में, बहुत सारे बिजनेसेस में विजन होता है, मिशन होता है, वैल्यूज होती हैं. अनफॉर्चुनेटली अगर आप उन ओनर से पूछोगे कि आपका विजन क्या, उनको याद भी नहीं होगा. राइट? तो लिखने में बड़ा अच्छा है, दीवारों पर लगा होता है. वो 15 साल 25 साल 20 साल वाला बनाया वो है. तो हम लोग एक काम और करते हैं, हम लोग कल्चर्स ऑल्टर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ऑल्टर करते हैं, जहाँ पे सब लोग वैल्यू सिस्टम से ही काम करें. तो जो लोग आपके स्टेक होल्डर्स बाहर से आए तो उनको लग जाए यार ये कंपनी इस वैल्यू सिस्टम से काम करती है. तो ये नहीं आई कि अपॉर्चुनिटी आई तो ग्रैब कर लिया, चाहे उसके लिए साम दाम दंड भेद कर रहे हैं, वो नहीं. मगर उसके लिए कमिटमेंट. मगर अगर ऐसा हो जाए तो कोई रोक नहीं सकता आपको ऊपर जाने में. जैसे टाटा का नाम सुनते सबसे पहले क्या आता है? ट्रस्ट. सोचने की जरूरत नहीं, और हमको पता भी नहीं है टाटा क्या है. करेक्ट. किसी को नहीं जानते हम. मतलब ऑब्वियसली. तो वही अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का हो जाए तो आप सोचो आप कहाँ पहुंचोगे. मगर ये एक प्रोसेस है. प्रॉब्लम क्या है? एवरीबडी वांट्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. ओवरनाइट चाहिए, जो होता नहीं है. मनीष, एक क्वेश्चन ना, लॉट ऑफ यंगस्टर्स, एंड मैं जब थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो उन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन दिया अभी टीम ने. वो ये कि वो बोलते हैं यार हम बड़े ध्यान से काम कर रहे होते हैं, ठीक है, मगर हमारा ध्यान ही नहीं होता काम पे. मीन्स दे कांट फोकस. दे माइट बी टॉकिंग टू यू ऑल्सो, दे आर लिसनिंग टू यू ऑल्सो, बट देयर माइंड इज वेवरिंग ऑल द टाइम. व्हाई इज दिस, एंड इज देयर एनी सोल्यूशन टू दिस? So they are not listening, they are hearing. Okay. That means they can repeat what is being said. But वो उनके कॉन्शियसनेस में नहीं गया. तो ये क्यों होता है बताया हूँ. तो इसकी एक छोटा सा एनालॉजी देता हूँ. अगर जमीन में से पानी निकालना हो तो खुदाई शुरू होती है. तो पहले पत्थर, छोटे छोटे कंकड़, लीव्स, फिर मिट्टी, फिर थोड़े से बड़े कंकड़ निकलते हैं, फिर गीली मिट्टी, फिर बहुत बड़े पत्थर निकलते हैं, फिर पानी निकलता है. पानी ऑलरेडी है. तो हम लोग ना अगेन काउंटर इंट्यूटिव है ये. हम लोग गेम ही उल्टी खेल रहे हैं. जैसे हमारे को कॉन्फिडेंस चाहिए, हमारे को फोकस चाहिए, हमारे को क्या कह सकते हो आप, बीइंग इंटरेस्टिंग चाहिए, अच्छी बातें कर सके, कुछ कर सके, राइट? सब कुछ चाहिए. हमारे को ये नहीं देखना चाहिए कि क्या चाहिए. फोकस कहां से मिलेगा? कहीं अवेलेबल नहीं है. जैसे पानी है ना, फोकस भी वैसे है. हमारे को ये देखना चाहिए हमारे फोकस को कवर किस किस चीजों ने किया. ना हमारे ब्रेन में कॉन्वर्सेशन चलती है. 4 से 5 बिलियन न्यूरॉन्स फायर होते हैं, राइट? और कॉन्वर्सेशन चल रही है. जितनी कॉन्वर्सेशन आपके दिमाग में चलेंगी 250 से 450 के करीब, वो कौन सी कॉन्वर्सेशन कब आपके दिमाग में आ जाए उसके पास, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है. वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं. तो ये ओपन लूप्स हैं कॉन्वर्सेशन के. जैसे जैसे इनको क्लोज करते चलोगे वैसे वैसे आपकी डिस्ट्रैक्शंस कम होती चलेंगी. कभी सेल्फ डाउट आ जाता है, कभी फियर आ जाता है, कभी कोई पुरानी बात आ जाती है, कभी कोई कुछ कह देता है तो आप हिल जाते हो. तो डिस्ट्रैक्शन तो 50 चीज की है. तो अगर आप उन डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना चाहते हो तो देखो दिमाग में क्या क्या चल रहा है. हम उसको हटाने की कोशिश करते हैं. हम बोलते हैं फोकस. हम उसको ढूंढ रहे हैं जो मिल नहीं रहा, जो कहीं नहीं मिलेगा. हम उसको नहीं हटा रहे जिससे छुपा, जिसकी वजह से नहीं मिल रहा. तो हम गेम ही उल्टी खेल रहे हैं. Absolutely. One more question. So a lot of people are confused between therapy
एंड कोचिंग, तो पहले तो इसमें डिफरेंस बताओ, थेरेपी में और कोचिंग में क्या फ़र्क है, और ये पता कैसे चलेगा कि किसको थेरेपी चाहिए या किसको कोच के पास जाना चाहिए? तो थेरेपी मीन्स कि आप किसी डॉक्टर या किसी स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हो, राइट? साइकेट्रिस्ट के पास है। चाहे साइकेट्रिस्ट हो, श्रिंक हो, जो भी आप कहना चाहो। थेरेपी की रिक्वायरमेंट तब होती है जब आपको कोई आजकल बहुत सारे लोग OCD है, ADHD है, तो लोग जाते हैं थेरेपी के लिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। कोचिंग थेरेपेटिक नेचर नहीं है। कोचिंग आपको एक्शन में लाने के लिए होती है, और जो भी आपके इम्पेडिमेंट्स, जो भी आपके बैरियर्स है, वो हटाने उसको आइडेंटिफाई करना और उसको हटाने के लिए। कुछ लोग बता देते हैं कि आप कर लो, उसको ट्रेनिंग बोलते हैं। कुछ लोग करवाते हैं, उसको कोचिंग बोलते हैं। क्योंकि जो चीज आप डील कर रहे हो, अगर आपको हटाना आता होता तो अब तक आप हटा ले चुके होते, खुद ही कर लेते। सो कोचिंग का मतलब ये है दैट यू आर टेकिंग पीपल अलोंग विद यू एंड रिमूविंग दैट। ये मेरा टेक है ऑन कोचिंग। नाउ डिफरेंट पीपल माइट हैव अ डिफरेंट से अबाउट व्हाट कोचिंग इज, राइट? Okay. For me, coaching is that you are committed to making sure that people get what they want and you are taking them through this whole process. तो ये पता कैसे चलेगा कि आपको थेरेपी चाहिए? बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ पीपल, यू नो, गिवन आई ऑल्सो हैव अ पास्ट इन कोचिंग, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल गोइंग फॉर थेरेपी वेयर दे मे नॉट नीड इट। तो ये कैसे पता चलेगा कि थेरेपी में जाना है, कोचिंग में जाना है? अगर कोई recurring problem है, then at least you should consult a doctor, a therapist. ओके। अगर फ्यूचरिस्टिक कुछ करना है तो कोचिंग को आ जाना चाहिए, गॉट इट, राइट? ना ये भी हो सकता है कि कोच आपके रेकरिंग प्रॉब्लम्स को भी दूर कर दे, मगर मैं रेकमेंड करूंगा पहले आप किसी थेरेपिस्ट के पास चले जाओ। एनीथिंग यू वांट ना बहुत सारे लोग आजकल डिफरेंट भी हो गए हैं कि आजकल साउंड थेरेपी भी चल रही है और अलग अलग काफी थेरेपी थेरेपी चल रही है। वो अगेन थेरेपेटिक मतलब कि आपको थोड़ा सा थेरेपी में मुझे लगता है सांस मिल गया आपको, खुद कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ, तो यू गेट अ लिटिल आउटसाइड हेल्प फॉर सेम्बलेंस, फॉर टेकिंग केयर ऑफ समथिंग। एक्यूट है तो जाना ही चाहिए। बाकी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। If you are inquisitive and curious to know about what and how things work for you, do all kind of stuff. Yeah. मगर कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है आपको, जिससे आपका चैन लिया हुआ है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी हो रही है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप टेक हेल्प। या नाउ एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 22 years of experience in this vast मीन्स जो नंबर्स का एक्सपीरियंस होता है ना, कि आपने कितने नंबर ऑफ पीपल से डील किया, उसको मेरे हिसाब से कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। सो व्हाट वुड बी योर एडवाइस फॉर बडिंग कोचेस, यू नो, पीपल हु हैव टेकन ऑन दिस जर्नी और पीपल हु आर टेकिंग ऑन दिस जर्नी? उससे पहले, वुड यू हैव स्पेस इन योर डिजाइनिंग लाइफ अकेडमी इफ समबडी वांट्स टू लर्न कोचिंग? Like, do you provide that? So let's start from the second question first. Okay. So as of now, we do not have space, but if people join me on a longer term, I train them to lead program. Okay. So that is one. There are so many avenues open for coaching. It really depends on what kind of coaching you want to be in, or what kind of coach you want to be. Yeah. Like I said, I'm an implementation coach. I'm a productivity coach, right? Yeah. मेरा काम है कि लोगों को इम्प्लीमेंट कराऊं, रुके नहीं। हजारों इम्प्लीमेंट करेंगे तभी तो रिजल्ट आएगा। हाँ, तो मैं वहीं फोकस करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा मैंने आपको बता दिया आप कर लो, मैं आपको करवाऊंगा। करेक्ट। ठीक है ना? और तो दैट इज वन पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन आपने पूछा कि आप फिर से रिपीट करें। योर एडवाइस फॉर द budding coaches. budding coaches. What are the few things they should
be wary of or take care of or build? one they should take care of that whatever their niche is, whatever their strength is, उससे बाहर नहीं जाए. Stick आप हर to that. चीज के कोच नहीं हो सकते, हाँ, राइट? अगर आप हर चीज के कोच बन जाओगे तो बात बड़ी ही है. प्रॉब्लम हो जाएगी. दूसरा, लव पीपल, Mhm. because if you can see a light in all your coaches, then you will actually be able to provide something. आप उनके यहाँ देखोगे इस पे कमियां क्या हैं, तो आप कोचिंग नहीं कर पाओगे. आप ये देखो कि क्या ग्रेटनेस है और वो क्या डील कर रहे हैं. प्यार करना शुरू करो. जो उनमें क्वालिटीज हैं उसके लिए, जो क्वालिटीज नहीं है उसके लिए भी, जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो वीकनेसेस हैं उसके लिए. क्योंकि अगर आपके अंदर वो दिल बड़ा नहीं है ना, तो फिर आप डील नहीं कर पाओगे. फिर आप एक ऐसे रास्ते में चलना शुरू हो जाओगे जहां पे वो आप ठीक करने में लग गए. कोचिंग ठीक करने के लिए नहीं है. कोचिंग का काम है वो सारी चीजें हटाना जो उनको डिस्टर्ब कर रही हैं. उनको ठीक नहीं करना. तो हमारा काम होना चाहिए. तो दैट इज नंबर 2. एंड नंबर 3, जब आप नए नए कोचेस से मिलोगे, क्लाइंट से मिलोगे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. कुछ टाइम अपने खुद के लर्निंग एंड डेवलपमेंट भी लगाते रहना चाहिए. हमने जिस दिन ये सोच लिया कि हमको सब कुछ आ गया, तो ग्रोथ के जो किवाड़ है वो थोड़े से बंद होने शुरू हो जाते हैं. पता है मेरे लिए these podcasts that I do is a huge source. I never thought so. मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसे, but it's a huge source of learning and development because so many people come and share what they're up to. It's a नहीं, huge आज मैं source. आपके साथ आया हूँ, मेरे लिए बहुत सारी लर्निंग एंड डेवलपमेंट. क्योंकि हर क्वेश्चन में आपने मुझे मजबूर किया है सोचने के लिए. और फिर मुझे भी दिखना शुरू हो गया कि अच्छा और क्या क्या कर सकते हैं, है ना? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा अभी कि क्या कोचेस आगे ट्रेन हो सकते हैं. हाँ. ये वाला क्वेश्चन कभी हमने वहां से सोचा नहीं था, मगर आप सोच सकते हो. मगर आप सोच सकते हैं. जब आपने बोला ना कि यूर एन इम्प्लीमेंटेशन कोच, इम्प्लीमेंटेशन प्रोडक्टिविटी कोच, इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोडक्टिविटी कोच, तो मेरे कोच ने मुझे कहा, मतलब मेरे अंदर के कोच ने मुझे कहा कि ये भी पहले दिन नहीं डिफाइन किया होगा आपने. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक फ्रॉम योर कोचिंग स्टाइल एंड व्हाट यू केप्ट कोचिंग, यू केम अप विद कि दिस इज व्हाट माय नीश इज गोइंग टू बी. इज दैट करेक्ट? Yes and no. So let me tell you how yes and no. So when I started on my own after Landmark, I was a productivity coach. Okay. So all my tools are to make you productive. Okay. But then we thought कि productivity coach में ना लोगों को समझ में नहीं आती productivity coach क्या होता है. तो हमने कहा नहीं, हम productivity coach तो हैं मगर हम implementation coach भी है. कैसे कि हम आपका हाथ पकड़ के बोलते हैं अच्छा ये करो, हाँ. और आप नहीं करोगे तो हम बोलते हैं क्यों नहीं किया, चल इसको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं और फिर वो करा लेते हैं. हम तो आपको प्रॉमिस करते हैं आप हमारे पास आ जाओ, हम आपके गोल्स पूरे करा देंगे. परफेक्ट. नो क्वेश्चंस आस्क्ड. परफेक्ट. मगर क्या आप अपने आप को मेंटली रगड़ने को तैयार हो? ये आंसर देना जरूरी है. अगर आप तैयार हो तो मेंटली. हाँ. क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर आना आसान नहीं है. तो बेसिकली मोटी मोटी बात यह है, जो हमारा पहला क्वेश्चन था, दिमाग की बनी हुई लकीरें या ब्रेन पैटर्न्स ऑल्टर हो सकता है आराम से. तो एक टूल देते जाओ जाते जाते. तो बड़ा सिंपल सा टूल, इसको इस्तेमाल करना. और शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, मगर अगर इसको इस्तेमाल कर लिया तो कल से 20% प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. नोटिस कर लेना. यानी जो काम आप 8 घंटे में करते हो, मेरे हिसाब से 6 घंटे में कर लोगे. वेरी गुड. ठीक है. फ्यूचर से रिलेटेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना. फ्यूचर से रिलेटेड जब आप कुछ करना चाहते हो, अगर आपका दिमाग बोले कि मत कर, तो उसका उल्टा कर लेना. करेक्ट. ना कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, अच्छा दिमाग बोले तो उसका उल्टा करना है, तो मतलब अगर मेरा दिमाग बोले कि ड्रग्स मत लो तो ड्रग्स ले लूं? नहीं,
फ्यूचर से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड. सो एनी एक्शन दैट यू वांट टू टेक इन द फ्यूचर, right now for the future, फॉर द फ्यूचर. so your brain will stop you if it goes beyond your comfort zone. तो बड़ा सिंपल है, आपके थ्रेशोल्ड लेवल है, कंफर्ट जोन ये, इसके बीच में आपकी लाइफ घूमती है. तो जैसे ही आपके पास कोई काम आएगा जो कंफर्ट जोन के बाहर जाना होगा, आपका ब्रेन बोलेगा मत कर. और जिस दिन इसको तोड़ दिया, एक नया थ्रेशोल्ड लेवल बन जाएगा. तो अगर आपका ब्रेन बोले मत कर और वो फ्यूचर से रिलेटेड है, तो उसका उल्टा कर दो. उल्टा कर देना, अपने आप को, आपको और मेरे को थैंक्स करते रहोगे. 20% से ज़्यादा मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ. ऑलरेडी मेरे दिमाग में 2-3 चीज़ें आ गई. मैं करना शुरू हो गया था, तो शायद 20% से ज़्यादा ही मिनिमम की गारंटी है. करेक्ट. बस आपने ये पकड़ना है, अच्छा ये क्यों बोल रहा, मना कर दिया, थैंक यू. तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपका ब्रेन आपको फ्यूचर से रिलेटेड मना कर दे, तो भगवान जी को थैंक यू किया करो कि आपको कि अब आपने रास्ता दिखा दिया नहीं, मुझे. आपको सुनाई भी दे गया. और मुझे सुनाई भी देगी और रास्ता दिख गया, करेक्ट. क्योंकि यही रास्ता है ग्रोथ का. करेक्ट. कंफर्ट जोन तोड़ोगे, ग्रोथ है. और ये एक प्रोसेस है जो आपको कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा. परफेक्ट. और अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते जाओ और आगे निकलो, यही चाहता हूँ. Thank you so much, Manish. It was a fabulous experience. I wanted you to be on our podcast for a long time, and I'm very sure a lot of viewers will benefit a lot from here. ग्रेट. And we wish the Designing Life Academy super success of implementing productivity. Thank you so very much. And again, thank you for giving me this opportunity. Really appreciate it. Thank you. Thank you. So everybody, this was again a great podcast from Space Creators. So do subscribe and like this channel. And if you want to inspire more people in your life, share this video with them. Thank you so much.